الحمد للہ المتوحد بجلالہ المتفرد والصلاة دوام علی خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم مأوى عند الشدائد فإلى العظیم توسل بکتابہ وبأحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اچھی آواز نال درود پاک ذرا گج بج کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. آسان لفظوں میں کہہ دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے. حمد و صلات کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالی مجھ نہ چیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حاضرین، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا عنوان آپ احباب بخوبی جانتے ہیں. واقعہ کربلا میں نظریہ پاکستان کی روح مضمر ہے. واقعہ کربلا سے ہمیں پاکستان جیسی مملکت کے وجود کی اس نظریے کی نمو کی ایسی مضبوط مہک آتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح اس ریاست مدینہ کو بچانے کے لیے امام حسین تشریف لے گئے اور اسی نقش قدم پر بننے والی ریاست مدینہ یعنی پاکستان کو بچانے کے لیے اور بالکل ہو بہو ریاست مدینہ کی شکل و شباہت دینے کے لیے نظام مصطفی کے نفاذ کے لیے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ میدان عمل میں نکلے. میں نے روح اس لیے قرار دی ہے اور یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو منشور ہے یا ہماری جد و جہد کا جو مقصد ہے وہ سوائے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے اور کوئی نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی اور مقصد ہے تو بسم اللہ جی، آپ جدھر جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ہمارا جد و جہد کرنے کا مقصد، ہمارا میدان عمل میں آنے کا مقصد، ہمارے دھرنوں کا مقصد، ہمارے مارچز کا مقصد، ہمارے جلسوں جلوسوں کا مقصد، ہمارے سیاست میں اس طریقے سے اس طریق پر جمہوریت کے طریق پر آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس ملک کو وہ ملک بنائیں جس مملکت کا خواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اساس پر دیکھا گیا تھا. آپ حضرات جن تسی حضرات بیٹھے ہو اور جویں تسی خاموش طبیعت نال بیٹھے ہو گل سن رہے ہو، یہ ذرا تھوڑے ذوق دا مظاہرہ فرماؤ. میں دو گلاں کرنی ہیں تہاڈے نال بڑیاں بڑیاں. دب کے بولو ذرا، مٹھے نہیں بولو، دب کے بولو سبحان اللہ. وہاں ایک یزید مجسم تھا. آج یزید ایک سوچ کی طرح ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے. وہاں یزید کا ایک وجود تھا اور اس کی افواج تھی. آج یزید کے کئی وجود ہیں اور وہ وکھرے وکھرے رنگوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج بھی اسی آمریت کی طرف بلا رہا ہے کہ جس آمریت کی طرف وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا چاہتا تھا. آج کے یزید کا طریقہ واردات تھوڑا سا مختلف ہے
लेकिन यजीदियत वही है, हुसैनियत भी वही है। और हमने चश्मे फलक से, चश्मे फलक ने भी यह नजारा शायद कभी कभी देखना है कि जिस तरह मैदान करबला में हजरत इमाम अली मकाम के साथियों ने इस्तिकामत का मुजाहरा किया, सदियों के बाद खादिम हुसैन के साथियों ने भी करीब करीब उसी इस्तिकामत का मुजाहरा करके दिखा दिया उम्मत को। और उसका रिजल्ट आपके सामने है जी। वड्डियां वड्डियां जमाता, वड्डे वड्डे ग्रोह, बड़े बड़े ओहदे, वड्डियां वड्डियां गड्डियां ते सारा कुछ, बड़ा माल, बड़ा पैसा, लेकिन दामन में क्या है जी? कुछ नहीं है। कर कह सकते हैं जी कुछ नहीं है। मुल्क की लार्जेस्ट पार्टी है जी, साबका प्राइम मिनिस्टर रहा है जी फलां जमात का। मैंने कहा जी साबका प्राइम मिनिस्टर रहा है तो 3 बारी तरीका दे के अंदर बढ़ गया, क्यों? नुकसान का अंदेशा था। मैंने कहा जिन्होंने नुकसान देखना होता है मियां वो इनकलाब नहीं लाया करते जो तन मन धन वार के निकलते हैं। इनकलाब का दावा भी उन्हीं को देबा होता है अल्लाह के फजल से। और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शेरों को हमने ये देखा है, बखुदा हमने किताबों में तो पढ़ा था हमारे बड़ों ने किस तरह तारीख रकम की है, लेकिन अपनी निगाहों से हमने इस जमात में उन नौजवानों को देखा है जिन्होंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के तहफ्फुज के लिए एक इरादा बांधा और तगड़े और मजबूत इरादे के साथ मैदान अमल में है। और ये मत समझिएगा ये सियासत हमारी मंजिल है, ये वोट हमारी मंजिल है, या एमपीए या एमएनए बन जाना हमारी मंजिल है, चेयरमैनशिप हमारी मंजिल है, ये हमारी मंजिल नहीं। बाबा जी एक जुमला फरमा गए, आप फरमाते सारा कुछ भी साढ़े को आ गया, असा तख्ता उत्ते बैठे नजर नहीं आवांगे, हाँ रसूलुल्लाह दे मुसल्ले दी चौकीदारी करते जरूर नजर आवांगे। तो आप आज तुम किसी चेयरमैन को यह सवाल नहीं कर सकते दसो जी गड्डी किधरों आई, तो मैंने कहा यह साद रिजवी का जिक्र है जिससे तुम गाड़ी के बारे में सवाल कर सकते हो। यह अमीरुल मुजाहिदीन के लख्ते जिगर से ही सवाल किया जा सकता है, यह उनके मिशन से वाबस्ता किसी मुखलिस कारकुन से पूछा जा सकता है, तो मठे कुरी भी नहीं आएगी, एक लम्हे के लिए भी परेशान नहीं होगा। अगर तुम्हारा जी चाहे, तुम तो एक गाड़ी की बात करते हो ना, हमारे शब रोज के खाने के एक एक दाने और पानी के एक एक कतरे का हिसाब मांगो और हिसाब लेने वाले ते बनो जियो जा हिसाब असा देने तो आटे च कोई बंदा जमिया ही नहीं जरा लबैक वाले को हिसाब ले सके। हिसाब लेने वाले तो बनो। मियां हिसाब लेने के लिए बंदा वो आए जिसका अपना दामन करप्शन से पाक हो। और हमसे हिसाब, आप क्या समझते हैं जी साडा हिसाब नहीं होता, हमसे तो कदम कदम हिसाब होता है। ऐतन लबैक दे कारकुनान को पूछो ना जनाब की बीत दी, दसो सरकार पल्ले खर्चे करते हो और जनाब जाना भी देंदे हो, वक्त भी देंदे हो, माल भी लांदे हो, सारा कुछ करते हो, पर्चे भी झलते हो, मुचलके भी भरते हो, जेलों च भी जाते हो, सारा कुछ किया। दसो पार्टी ने कितना को फंड अमरीका चो लैके तुहाडे हवाले किया जी, दसो जरा कितना खर्चा किया। तो हमारा तो कारकुन अपने एक एक रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार है। तुसी अपनी फंडिंग का हिसाब दो जरा, फिर पता चलेगा इस वतन अजीज पाकिस्तान के साथ मुखलिस कौन है। गिरामी कद हाजरीन, मैं इस मौजू ते बहुत लंबी चौड़ी गल ना कर दे आया, सिर्फ मकसूद दी एक जुमला एक दो गल्लां अर्ज करके गुफ्तगू नूं समेटना चाहांगा कि हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तालन और आप दे साथियां जड़ी इस्तिकामत दा मुजाहरा फरमाया, अगर असी चाहते हैं रसूल पाक दा दीन नाफिज हो जाए तो सानू उस इस्तिकामत को फैदा हासिल करना ही पैना। समझे नहीं तो सुभान अल्लाह फरमाओ, मैं समझावा गल। उस इस्तिकामत दा मुजाहरा करना पैना जी। और बाबा जी ने तरीका सानू दस दिता। हजरत इमाम अली मकाम के बारे तो असा पढ़िया सी ना किताबों में, उस्तादों को सुनिया कि भला अमीरुल मुजाहिदीन ते प्रैक्टिकल करके साडे सामने रख गए। जो फौजा एक पासे, इदारे एक पासे, हुकूमत एक पासे, यूरोपीय यूनियन एक पासे, उन्होंने हवाई एक पासे, दुनिया की नजर सुपर पावर रहने वाला अमरीका एक पासे, तो व्हील चेयर ते बैठने वाला बाबा एक पासे। सारे क्या कही अपने भी आके आख्या सरकार मुड़ न जाइए, सरकार कोई मसले आज कोई हिकमत ना इख्तियार कर लीए, इंज ना कर लीए, कट्ठिया होकर दोबारा आइए। तो बाबा जी ने फरमाया कट्ठिया होकर दोबारा आने वाले कभी वापस नहीं आते। मैदान करबला में हुसैन जितने गए थे उतने ही डट के आए थे।
वो सारे के सारे डटे रहे। इमाम अली मकाम ने फरमाया दिया बुझा के, कहा जो जाना चाहता है चला जाए, रात का अंधेरा है, मेरे खून के प्यासे है ना, तुम जाना चाहते हो चले जाओ। लेकिन वहां पर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सहाबा की वो औलादें जिन्होंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ वफादारी का हक अदा कर दिया। उन्होंने कहा सरकार एक बार नहीं 3 बारी भी बत्तियां बुझाओगे, हम यहां बैठे हैं तो बैठे हैं। और मजे की बात देखो, वहां मैदान करबला में ये 82 हजरात थे करबला वाले, मेरे महबूब की आल के अफराद 19 हैं, कुछ सहाबा हैं, कुछ ताबीन है। ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है, ये मदीने का लश्कर है, मदीने वाले का लश्कर है। और मुकाबले में 22,000 बंदा जमा है। कितना बंदा है? 22,000। और इब्ने ज़ियाद पता क्या खत लिखता है कूफे में? कहता जी बंदे और गलो। आप समझे नहीं है, कहता बंदे और गलो, हम 22,000 होकर भी थोड़े। तो मुझे ये मतलब समझ आ गया। और मैं क्या 400 बंदा लबैक वाले अंदर बैठा होवे ते 4,000 बंदे 4,000 बंदे हुक्मराना दे नुमाइंदे बन के आ जान, इदारे जमा हो जावन ते 400 को लत्ता कमदियां होंदियां। इस वास्ते नहीं कि साडी कुछर कोई बंदूक है, और जलियो बंदूका वाले असी नहीं बने, असी ते अजे ईमान दी ताकत नाल बगैर शमशीर दे मैदान विच खड़े हां। और मैं एक हदीस शरीफ सिर्फ आपके सामने जिक्र करने लगा हूं। मैं क्या इतनी गैरत ना हो ना रसूल पाक के दीन के बारे में, तो बंदे को हुसैनी कहलवाना छोड़ देना चाहिए। अगर हुजूर के दीन की गैरत ना हो, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान तैयब बुखारी में है, हदीस का नंबर 2691। और रावी, मैं रावी का नाम लेता हूं, आप सुभान अल्लाह फरमाएंगे। रावी हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला। हौली बोलो जरा, किधर को सुन ना ले, दब के बोलो सुभान अल्लाह। ये वो सहाबी है, इनका मकाम ही बयान करने लगू तो आप हैरान हो जाएंगे। जरा ऐसे सुभान अल्लाह है, मैंने पता लगे ये मजलिस अहले बैत की भी है। जब सहाबा का नाम आता है तब भी इनका ईमान जगमगा रहा होता है। ए ओले बंदे नहीं जेड़े अहले बैत का नाम लेके सहाबा नाल 2 नंबरी करन, या सहाबा का नाम लेके अहले बैत नाल 2 नंबरी करन। और लबैक वाले वो है जेड़े नबी दी सारी निस्बतां दा उंजे ही कर देने जिवें करन दा हक हुंदा है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, कहते हैं जी सहाबा हुजूर की बारगाह में आ गए, आगे अर्ज किया रसूलुल्लाह अब्दुल्ला इब्ने उबई कलमा पढ़ता है, हुजूर आपका सानू भी अज लबैक वाले बंदे कहंदे है, तुसा कोई वखरी आज के रसूल हो, तुसा कोई वखरा कलमा पढ़िया है? वो मुस्तफा कमाल भी कहता है कराची, हमारे मुंह पे आके कहते हो लबैक या रसूल अल्लाह, हम कोई मुनकिर है? तो मैंने कहा यही काम हुआ था वहां मदीना पाक में, वहां मक्के में यही काम हुआ था जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक के पास। और किस लिए? सहाबा ने अर्ज की हुजूर सुलह कर आइए। हुजूर ने फरमाया चलो। हजरत इमाम बदरुद्दीन नैनी फरमाते हैं कि मनसब नबूवत का तकादा होता है जब सुलह की गल होवे तो नबी टुर पैंदा है। हुजूर तशरीफ ले गए और जब वहां पहुंचे तो उस बदबख्त ने क्या कह दिया, वही गल आखी जड़ी मुस्तफा कमाल आखी, वही गल। उन्हें एक भैड़ी जी गल कर दी मेरे महबूब की सवारी के बारे। मैं वो जुमला यहां दोहराना नहीं चाहता। उसने हुजूर की सवारी को देखकर ना ऐसे अपने नाक ढांप लिया और कहने लगा जी मुझे ये जो धूल उड़ रही है ना इससे मेरी नाक को परेशानी हुई है। ये जुमला उसने कह दिया। अब एक सहाबी है जी, अंसारी सहाबी, उनका नाम मैं लेने लगा हूं तो जरा दब के बोले आज, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रदी अल्लाह तआला। और हजे तड़ी सुभान अल्लाह मठी है। मैं एक और गल दसना, तबकात इब्ने साद में यह बात मौजूद है कि जब फतह मक्का के बाद उमरा कजा के लिए हुजूर तशरीफ ले गए तो ऐ हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा इंज मोढियां दे उत्ते ना मेरे महबूब की सवारी की लगाम फड़ी हुई इंज रखी मोढे उत्ते ते अगे अगे जांदे पेन। ते पता की फरमाने, फरमाने यबनल कफार, ओ काफिरां दे बच्चो परा हो जाओ, तुहानू नहीं पता हुजूर आ गए। एडी डाडी गल हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने फरमाई। अगला जुमला पता की फरमा रहे सन, आपने फरमाया काफिरां दे बच्चो परा हो जाओ, हुजूर आ गए। असी जड़ी तुहाडी तौणी लाई है भुल गए हो? असी ते ओ तौणी लाई है कि जदों यार नू लगे तो यार नू भी भुल जाता है। अच्छा, हजरत उमर फारूक बोल पे, ये सुनन निसाई शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है। हजरत फारूक आजम बोले
اور عرض کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہنے لگے عبداللہ ایک تے حرم شریف وچ گل کرنا پیا تے دوسرا سونے نبی پاک دے سامنے کچھ خیال نہیں کر لینا. یہ جملہ حضرت عمر فاروق نے کہا تو میرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نہیں بولے, میرے مصطفیٰ بولے. ہولی بولو یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے راتی سوے خواب حسین پاک دا دیدار عطا ہو جائے مالک. تو مولا جڑا ہاتھ چوکے ہے تو اچھی سبحان اللہ بولے راتی سوے خواب مولا علی دا دیدار عطا ہو جائے. میں تو دعا ہی کر سکنا جی. غور فرمایو اے تو سمجھ آئے گا ریاست مدینہ نظریہ پاکستان اور پھر دین کے لیے تقاضا کیا ہے بندہ مومن کی غیرت کا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جب یہ بات کہی نا حضرت عمر نے کہا ایک تے حرم شریف ہے اتو سونے نبی پاک موجود نے تو کوئی اور گل نہیں کرتا شیر پڑھنا پیا ایڈے ایڈے ڈاڈے. تو میرے محبوب نے حضرت عمر کو روک دیا, کہا عمر روک جا. عمر عبداللہ ابن رواحہ کو نہ روک, اینو کہن دے جو کہندا ہے, اینو کہن دے جو کہندا ہے, بلکہ اینو نہ کہن دے اے دے نال رل کے سارے ہی آکھو. کہنے تم لبیک کا نعرہ سب سے کیوں لگواتے ہو؟ میں کہ نبی کی سنت ہے. دشمنوں پہ بدتاری کرنے کے لیے ہاتھ چوک کے رل کے تگڑی آواز دے نال نبی دی عزت دا نعرہ مارنا نبی دی صحابہ دی سنت ہے تے مصطفیٰ نو محبوب ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ جناب اچھی اچھی بولن لگ پے. شیر او کافراں دے بچیو پرا ہو جاؤ, تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے کل دی پھینٹی بھول گئے ہو. جدوں اے شیر پڑھی جان صحابہ نار رل گئے تو سنے جی حضرت انس کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں جی مکے کی وادیاں پہاڑ صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ پڑے. اے کمیونٹی باغ جڑا اے پارک جڑا گونجے تہاڈی آواز نال, پتہ لگے صحابہ دے غلام بیٹھے نہیں تھے. ذرا دب کے سبحان اللہ. مٹھے کیوں ہوندے سنیو, دب کے بولیا کرو. جب ہم مطلق لفظ صحابہ بولتے ہیں تو مولا علی بھی شامل ہوتے ہیں, امام حسین پاک بھی شامل ہوتے ہیں, حسن مصطفیٰ بھی شامل ہوتے ہیں, سیدہ زہرا پاک بھی شامل ہوتی ہیں. سارے دا فیض لینا تے دب کے بول سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو پیچھے کر کے نا بخاری علی روایت والے پاسے آ گیا. غور کرنا جی, پیچھے کر کے نا تے آپ نے عبداللہ ابن ابی نو للکار کے گل آکھی. کہنے لگے مردودہ تو حضور دی سواری دے بارے, حضور دی سواری تو اڈن والے کٹے دے بارے ایڈی کٹیا گل کیتی ہے, ایڈی کمزور گل. یہ حضور موجود ہے تے آئے کا دے واسطے جی صلح کرن, اور صحابی رسول کھڑے ہو گئے, کہا تم حضور کی سواری کے بارے میں بات کرتے ہو. اور ایک بڑا بڑا جملہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا تھا, فرمایا واللہ ہے, فرمایا منو میرے رب دی قسم ہے میں تیری خوشبو نالو میرے نبی کی سواری زیادہ طیب و طاہر و پاکیزہ ہے. قسم چوک کے گل کہہ دیتی. میرے محبوب نے منع نہیں فرمایا. جدو سونے محبوب دی نسبت دے بارے غیرت دی گل آ جائے تو سونے منع نہیں کر دے, روکا نہیں, منع نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات کہی ادھروں بھی بندہ ایک آکڑ گیا. انہیں آخیا تو کو بہتا کلمہ پڑھیا ہے جی میں سانو کہیں دن آپ نے آپ کو زیادہ عاشق رسول ہے. میں نے کہا ہاں ہے. تم کلمے کے ٹھیکیدار ہو؟ میں نے کہا ہاں ہے. کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے. میں کہ عبداللہ ابن ابی والا پڑھیا نا, تم نے عبداللہ ابن رواحہ والا پڑھا ہوتا. نام دونوں کے عبداللہ ہیں, ایک ابن رواحہ ایک عبداللہ ابن ابی ہے. ایک ایمان کی اعلیٰ درجے پر فائز ہے جس سے نبی بھی محبت کرتے ہیں, اور ایک ایسا مردود ہے جس سے نبی کے صحابہ بھی محبت نہیں کرتے, نبی بھی محبت نہیں فرماتے. نام بھی دونوں دا ایک ہے, کلمہ بھی دونوں پڑھ دیں. فرق ہے نا. تمہیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہ آئے تو تم کو مولوی سیاست کے لیے نکلے. میں کہ نہیں, سیاست ہم استعمال کر رہے ہیں وگرنہ ہم نکلے ختم نبوت کے لیے ہے. تم ہو جو مذہب کا ٹچ دیتے ہو, ہم سیاست کا ٹچ دیتے ہیں, یہ فرق ہے. تمہارا اوڑھنا بچھونا اقتدار ہے, اقتدار تو ہمارے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. تم کس اقتدار کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ ہم اس لیے نکلیں گے ان کا منگتا پاس ہے, ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. ہم اس تاج و تخت کے لیے نہیں, مصطفیٰ کی عزت کے لیے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں.
اور اس काफिले में कमजोर ईमान वाला शामिल नहीं हो सकता। इस्तिकामत वाला, किले का पक्का तगड़ा ईमान वाला। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने जब ये बात आपने कह दी ना जी, उधर एक बंदा बोल पिया, उन्हें आख्या तुसी सुलह करन आए हो, लड़न आए हो? असी लड़ाई करनी तुहाडे नाल, तुहानू मारांगे। लो जी इन्नी गल सी हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ते हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा, बाकी सहाबा भी बावां टुंग लईयां। होया की जी, हदीस दे लफ्ज़ है बिल जरीद बैनहुमा दरबुन बैनहुमा बिल जरीद, दोवां ग्रोहां दे विच लड़ाई हो गई, उन्हें छुरियां कढ लियांदियां। सहाबा ते खाली हथ गए सन, वो छुरियां ले आए, तलवारां ले आए, तीर नेड़े जो उन्हां को हथ लगा ले आए। सहाबा ने नहीं आख्या ठहरो ठहरो असी पहला घरों तलवारां ले आईए। कलंदर लाहौरी बोला भाई काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हाँ साडे कोल हुकूमत कोई नहीं, पर तावी वड्डियां वड्डियां हुकूमतां नूं तिगदी दा नाच नचा रहे हैं। मैंने कहा ये है मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तुसा पर्चे कट के भी तक ले, तुसा जेला सुट के भी तक लिया, तुमने दहशतगर्द डिक्लेयर करके भी देख लिया, तुम हमारा बाल भी बांका ना कर सके तो कर सकोगे भी नहीं। एक नहीं हजारों करबला भी बपा कर दो, हुसैनियत कल भी जिंदा थी, हुसैनियत आज भी जिंदा है, क़यामत तक रहेगी। ये तुम्हारे यजीद के मिटाने से भी कभी हुसैन मिटा है, तो जब यजीद के मिटाने से हुसैन नहीं मिटा तो यजीदियत के मिटाने से खादिम हुसैन कैसे मिट जाएगा? अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लो जी छुड़ियां कट लियांदियां। अब सहाबा ने यह नहीं कहा हुजूर असी तो सुलह करन आए सन, ये तो अगों सानू पै ही गए ने, मेरे महबूब की बारगाह च कोई शिकायत नहीं की। सहाबा की कीता, गौर करना जी। बिल आईडी इहदा आसान तर्जुमा मैं दो ही तरीके नाल करना। मुहद्दिसीन उलमा फुजला और बड़े बड़े इल्मे हदीस के माहिर जेड़े तर्जुमे मफाहिम बयान कीते, मैं सादा लफ्ज़ बयान करा। सहाबा किराम ने हथां दी पोजीशनां बना लईयां, ते दो ही पोजीशनां बनदियां जी, या वेखते नहीं पे मेरे हाल, तुसीं तवज्जो फरमाओ, मेरी गल मुक गई बस। या वाली पोजीशन, आओ फिर तलवारां दे सामने ऐ निकल के चपेड़ा तान लईयां, तो या फिर इधर आ, फिर तेन मैं दसा सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ते बाद से आबा फिर वह बिन्नियाल अपनी जुतियां ला के हाथ च फड़ लईयां, ते मुनाफिकां नूं लम्मिया पा के मुछिया, ते इहो जिहा तोना लाया। अज भी खादिम हुसैन रज़वी दे शागिर्द उन्हां नूं थोना लांदे पे, और ये लगदियां रहने। कहता जी नंगा करके मारा गया। मैं क्या जब 40,000 उलमा को पकड़ा था तब ये तेरे कपड़े किधर थे? रियासत जबर कर रही है। मैं क्या जब गोलियां चला रहे थे नबी के नाम लेवाओं पर, मुझे बताओ तब तुम्हारी रियासत क्या कर रही थी? रियासत मां का किरदार अदा करती है जब किसी और के पास हो तब, और जब तुम्हारे पास हो तो तुम सुतीले बाप के भी बुरा सलूक करते हो। क्या तुम्हारी जमहूरियत लब्बैक वाले लपेट के तुम्हारे मुंह पे मारेंगे, और पाकिस्तान के नजरिए को तुम्हारे नाच गानों में दफन नहीं होने देंगे। याद रखना, बज़ाहिर साडे हाथ च बंदूका नहीं, जुतियां लाना असी भी जानने हैं, कसूने फेरने असी भी जानने हैं, लेकिन बात अमन की है तो अमन से समझ जाओ कि मसीहा दर्द के हम दर्द हो जाए तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे सर्द हो जाए तो क्या होगा। ये जो लाखों करोड़ों हर तरफ लब्बैक वाले हैं, अगर सचमुच में दहशत गर्द हो जाए तो क्या होगा। अजे तो पूरे जिले नूं वक्त पै गया, 2 डकैत निकले, समझ आई कि नहीं? बड़ा चंगा काम कीता पुलिस वाले, चंगा काम कीता कि नहीं जी? जेड़ा काम चंगा वो चंगा ही है, ते जेड़ा सैयदा नाल जुल्म कीता ना वो जुल्म ही है क़यामत तक। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बाबा जी फरमाते होंगे सन, बच्चों तिल तिल लिखिया भरना पौसी, जिस दिन आप अदालत बैसी, ते अदल करे ता थर थर कंबन उचिया शाना वाले, ते जे फजल करे ता बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। जेड़ा चंगा काम होवे चंगा ही होंदा, लेकिन मैंने कहा ये चंगा काम तुमने किया है ना तो अपने मतलब के लिए किया है, काश वो चंगा काम नबी के दीन की खातिर भी कोई करके दिखा दो, हुजूर के दीनदारों से भी कभी मोहब्बत करके दिखा दो,
फिर हम कहेंगे हाँ मोहम्मद अरबी के गुलाम हर जगह मौजूद हैं। वगरना यजीद के जो लोग थे कलमा वो सारे ही पढ़ते थे, सारे ही कलमा पढ़ते, 22,000 लश्कर कलमा पढ़ता सी, लेकिन उनमें सारे के सारे मजबूर थे। किस वजह से? कहते असी तनख्वाह लेने यजीद को। वो यजीद के तनख्वाहदार थे। अगर किसी को नबी से वफा करने से तनख्वाह रोकती है उसकी अपनी मर्जी है। हमें तो तनख्वाहें तो क्या, ना औलाद ने रोका, ना मां बाप ने रोका, ना हमारी जान रोकती है। बाबा जी यही तो दस के गए कि जो गल आ जाए हुजूर दी निस्बत दी हया करन दी, उस वेले नहीं देखना मेरे को तलवार है कि नहीं है, बंदूक है कि नहीं है, बस मैदान इस खलो के मुस्तफा दी इज्जत दा नारा मार के दसना है कि असी ओही हां जेड़े मैदान करबला दे विच हजरत इमाम अली मकाम दे साथियां दे कोलों फैज लैके अज दे मैदान करबला दे विच खड़े हैं यजीद दे सामने। हाथ चुको जी, नारा मारो, गल मेरी खत्म हो गई। सिर्फ हुसैनी बंदा हाथ खड़ा करे तो पूरा हाथ खड़ा करे, कमजोरी नहीं। या अल्लाह जी आवाज होली होवे आप नहीं बढ़नी, ओदे ते ए जेड़े हुक्मरान मुसल्लत ने यही रहन दे, ते जेड़ा दब के नारा मारे उन्होंने हजरत फरूक आजम वर्गा हुक्मरान नसीब फरमा दे। इंज करके आवाज आए सीने दे दौड़ना, तुसी हौली चलाना जी, मजमे चो आवाज आए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। गिरामी का हाज़रीन, मैं लगन वन नारा तो तुसा तगड़ा करके लाना है ते लब्बैक दे नाल शामिल होना है इंशाअल्लाह। बोलो होवोगे कि नहीं जी? जेड़े अगे ही आओ सुभान अल्लाह, मुबारकबाद दे मुस्तहिक हो, ते जेड़े वेखण आए हो ना, मैं कहना आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो बाबा जी फरमान सन हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। आज सोने नबी पाक नाल वफा कर, जमाना सारा रुसदा ते प्यार रुस्से, सानू ओदी कोई परवाह हो सकती नहीं। वक्त थोड़ा है, काम ज्यादा, जख्म तो अपना है अब भी ताजा। गाजी इल्मुद्दीन का जख्म भी अजे ताजा है, गाजी मुमताज कादरी का जख्म भी ताजा है, आसिया मलूना नु तुसा रिहा कीता अजे जख्म ताजा है, उलमा दी शहादत का जख्म ताजा है, बाबा जी दी दाढ़ी फड़ के घसीट के जड़ियां तुसा ठुडे चपेड़ा मारियां जख्म अजे ताजा है, जेड़े 36 नौजवान सीनिया ते गोलियां मारियां अजे जख्म ताजा है। अजे ऐसा फड़ना तुहानू मियां, वक्त थोड़ा है काम ज्यादा, जख्म तो अपना है अब भी ताजा। उठो जगाओ तुम दहर को, खतरा लाहिक है अब फकर को, क्या करोगे जवानियों का, दुनियावी रेशादानियों का। कोई जो मारे नबी पे डाके और बनाए नबी के खाके, फिर भी सुन्नी तू सो रहे घर, फैल जाएगा हर तरफ शर। उठ मैदान अमल में आ जा, नूर बन जुल्मतों पे छा जा, हबीब दावर शफी माशर, पिलाएंगे हमको जामे कौसर। तो आओ ना जानों को वार दे हम, ओ कल पिछले उतार दे हम, हाथ में लेके सैफ हैदर यजीदियों के उतार दे सर, और जमीन का किरदास पाक कर दे, मिर्जागिरी को खाक कर दे। जो पर्दा शाने नबी पे आए, ऐसे पर्दे को चाक कर दे, जो सुन्नियों ही से लेके खा ले, नबी की इज्जत पे हाथ डाले। और ऐसे कुत्तों को मारना है, अपने घर को संवारना है। अरे उठो उठो अब उठ भी जाओ, अरे नबी बुलाते हैं दौड़े आओ, इम्तिहानों का वक्त आया, लौटा दो अब तक जो कमाया, जो सर कटाने को तुम हो राजी। थाम लो आके दस्ते गाजी और लगा दो ऐसे नबी का नारा कि गूंज उठे जहान सारा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक